आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और भाजपा नेता दिलीप घोष पहुंचे सिलीगुड़ी। भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और भाजपा नेता दिलीप घोष उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने से पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारी दबाव के बीच तृणमूल कांग्रेस सरकार चला रही है। साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में भारी अंतर्कलह होने का दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस में भारी बिखराव देखने को मिलेगा। वहीं संवाददाता सम्मेलन में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया है। सरकार ने दिल्ली के इंडिया गेट में नेताजी की मूर्ति स्थापित कर उन्हें गौरव व उचित सम्मान प्रदान किया है, जबकि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने नेताजी के नाम की राजनीति की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, भाजपा नेता दिलीप घोष, दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन और डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी भी उपस्थित रहे थे। আমি প্রচার করতে গেছিলাম আসানসোলে 27 নম্বরে। আপনারা জানেন এত লোকজন বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়, পুলিশ আমাদেরকে আটকেছে। রীতিমতো কবাডি খেলছে আমরা পুলিশের সঙ্গে। তো সেজন্য আমরা টাকা পয়সা খরচা করতে হবে না, ওখানে লোক এমনিতেই ভোট দেবে। হ্যাঁ, জিতেন্দ্র তিওয়ারি আমাদের দিকে চলে এসেছেন, সেটা ওদের কাছে একটা বড় ধাক্কা, ক্ষতি, সেটা সহ্য করতে পারছেন না। তাই তাকে এইভাবে বদনাম করার, গালাগালি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আসানসোলে আমরা এগিয়ে আছি, লড়াই করছি। আমি 3 দিন প্রচার করেছি, 3 দিনই পুলিশ আমাকে রাস্তায় আটকেছে, প্রচার করতে দেবে না। আমাদের মাননীয় সভাপতি 2 দিন পরে ওখানে যাবেন, হয়তো আবার পুলিশের কান খাড়া হবে, তাকে আটকাবার কোনো রাস্তা বার করবে। তো সেই জন্য কলকাতা নয় যে এখানে পুলিশ গুন্ডাদের লুটে নেবে, বাকি জায়গায় পুরোপুরি টক্করের সামনে ওদেরকে পড়তে হবে। পাঞ্জাব অনেক দূর, এখানকার বালি পাচারকারীদের ধরছে না কেন? কারণ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের উপরে লোকের এই জন্যই ভরসা নেই। চোখের সামনে দেখছে গরু পাচার হচ্ছে, বালি পাচার হচ্ছে, কয়লা পাথর পাচার হচ্ছে, কিন্তু ধরে না। সেই জন্য লোকে সিবিআই কাছে যায়। ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আজকে প্রেস বার্তাতে এসেছেন। শিলিগুড়িতে কর্পোরেশন ইলেকশন, এর সাথে সাথে অন্যান্য কর্পোরেশনগুলো হচ্ছে, আসানসোল, চন্দননগর, আপনারা জানেন। শিলিগুড়িতে আমরা খুব শক্তিশালী, আগেও বিভিন্ন নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। এবারও ভারতীয় জনতা পার্টি এই কর্পোরেশন এবার দখল করবে এবং দখল করে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কর্মী নেতা আছেন তারা এই কর্পোরেশনের দায়িত্ব নেবেন। তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়টি বুঝতে পেরে শিলিগুড়ির মতো জায়গাতে, যাকে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় শহর বা কেন্দ্র বলা উচিত, সেই জায়গাতেও আমাদের কর্মী সমর্থকদেরকে নানাভাবে প্রতারিত করা, ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া, পার্টি অফিস ভাঙচুর করা, সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা তাদের তরফ থেকে চলছে। আমরা বরাবরই বলে এসেছি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে যে কর্পোরেশন ইলেকশনকে যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করতে হয়, কলকাতার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম প্রমাণিত হলো যে রাজ্য পুলিশ দিয়ে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করানো সম্ভব নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন কোন একটি জেলার পুলিশ সুপারকে যে আপনাকে কি মাননীয় রাজ্যপাল ফোন করে নাকি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যে মহামান্য রাজ্যপাল থেকে জেলার পুলিশ সুপার বা সিপি যেই হন না কেন, তাদের ফোন সুরক্ষিত নয়, অর্থাৎ তাদের ফোন ট্যাপিং এর ব্যবস্থা আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই সন্দেহ হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই পুলিশের উপস্থিতিতে কতটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন
হবে আমরা সন্ধিয়া। তবে শিলিগুড়িতে আমরা যেহেতু শক্তিশালী যথেষ্ট, শিলিগুড়িতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব এবং আমার বিশ্বাস আগামী দিনে এই শিলিগুড়ি म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत पूरे उत्तर बंगाल में हो रही है बारिश, दार्जिलिंग और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी, बड़ा ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के द्वारा पूर्व अनुमान के तहत उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जताई गई थी। शुक्रवार सुबह से ही सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बारिश के कारण शहर में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दार्जिलिंग पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में हिमपात होने से पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में हिमपात के कारण ठंड बढ़ गई है। घूम, टाइगर हिल, बताशिया लूप, चटकपुर के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई, जहां लोगों को बर्फीले मौसम का मजा उठाते भी देखा गया। नक्सलबाड़ी में एक व्यक्ति का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। मृतक के गले में बंधा हुआ था चमड़े का बेल्ट। नक्सलबाड़ी के जाबरा डिवीजन और लोहा सिंह बागान के बीच नदी से सटे इलाके में आज एक व्यक्ति का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उक्त मृतक व्यक्ति के गले से बंधा हुआ चमड़े का बेल्ट बरामद किया गया है। मृत व्यक्ति का नाम लक्ष्मण मुंडा बताया जा रहा है। आज स्थानीय लोगों ने शव को देखा और तत्काल नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त मृतक व्यक्ति कल रात नक्सलबाड़ी क्षेत्र में अपने बुआ के घर के लिए निकला था और आज सुबह उसका शव बरामद किया गया। आखिर यह घटना कैसे घटी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। घटना हुआ था कि वो अपना फूफू का घर में लोहा सिंह चाय बागान में गया हुआ था कल। तो वहाँ पर जाने के बाद में वो दिन में ही किसी के साथ में झगड़ा उगड़ा हुआ। उसके पश्चात आज हम लोग को सुबह में पता चला कि उसका डेड बॉडी नदी में पड़ा हुआ है। तो जाके हम लोग देखे डेड बॉडी को, थाना में इंफॉर्मेशन दिए। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को उद्धार करके नक्सलबाड़ी लेके आया। अभी किस प्रकार कौन इसको हत्या का अंजाम दिया, किस कारण से, ये अभी तक पता नहीं चला है। 4 दिनों से लापता है। फुलबाड़ी बाईपास स्थित पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक युवक, परिवार वाले चिंतित। अपहरण का शक, जांच में जुटी पुलिस। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज के फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पश्चिम धनतला का रहने वाला आइबुल इस्लाम नामक युवक फुलबाड़ी बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था और वहां 4 दिनों से लापता बताया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वहां फुलबाड़ी बाईपास स्थित पेट्रोल पंप में काम करता था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात 10 बजे तक उसकी ड्यूटी थी और उसने उस रात अपने घर पर फोन कर पेट्रोल पंप पर ही रुकने की बात कही थी, लेकिन अगले दिन वहां अपने काम से घर नहीं लौटा और उसकी खबर न मिलने पर परिवार वाले चिंतित हो गए और उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके पिता जनरुल इस्लाम ने बताया कि उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी जाकर पूछताछ की तो पता चला कि आइबुल इस्लाम मंगलवार की रात 10 बजे अपना काम खत्म कर घर के लिए निकला था। इसके बाद बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिवार वाले आज एनजीपी थाने पहुंचे और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं परिवार वालों को शक है कि कहीं आइबुल इस्लाम का अपहरण तो नहीं किया गया। इन्हीं शिकायतों के आधार पर एनजीपी थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। আমার ভাইস্তা ছোট ভাইয়ের ছেলে মঙ্গলবারে ডিউটি গেছে, সকাল 10টার সময় ডিউটি গেছে আর রাত 10টার পরে থেকে আর ওর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা মঙ্গলবার 2টার পরে থেকে আমরা খোঁজ করতেছি যে ও এখন কোথায়। তারপরে ওর পেট্রোল পাম্পে গেছি, পেট্রোল পাম্পে ভাই গেছে, ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, বলে না ও রাত্রি 10টার সময় তো ডিউটি করে চলে গেছে বাড়িতে। তারপর আমরা থানায় এফআইআর করলাম, মেসিং ডায়েরি করলাম।
থানা থেকে আসছিল আমাদের পালবাবু, ওনারা খোঁজাখুঁজি করলো, ওনারা ইয়ে করলো যে আশ্বাস দিল যে আমরা দেখতেছি। তারপর ওনারা তো সব এখন কী করতে না আমরা তো বলতে পারবো না। তারপর রিসেন্ট আমরা নতুন একটা নিউজ পেলাম আমার ভাগনার কাছে যে উনি নাকি ভাইস্তাটা আমার ওনাকে ফোন করে একটা নম্বর দিয়েছে দুইটা। এই নম্বর দুটা একজন ওর মাসি মেয়েটার নাকি আর ওর বাবার নাকি একটা নম্বর। তো আমরা তো আর বলতে পারি না ডাইরেক্ট। পুলিশকে আমরা জানাইছি, পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটার ফটো ছিল, আমার ভাইস্তা বাইকে বসেছিল, মেয়েটা গাড়িতে বসেছিল। তারপর আমার পুলিশকে এইসব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আমাদের বলছে যে আপনারা ওনাদের ফোন করবেন না, আমরা সরকারিভাবে ফোন করব, আমরা দেখি কি করা যায়, আপনারা কোনো কিছু করবেন না। तस्करी से पहले भारी मात्रा में अवैध सिगरेट जब्त, 2 गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के आसाम बांग्लादेश की सीमा के पाकड़ीगुड़ी इलाके में बारोबिशा फाड़ी की पुलिस ने काफ़ी मात्रा में अवैध सिगरेट को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त सिगरेट की अनुमानित बाजारी कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। असम से होते हुए बंगाल में सिगरेट की तस्करी की जा रही थी। गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर इस तस्करी को नाकाम कर दिया। एक कंटेनर से सिगरेट बरामद किया गया। गाड़ी के भीतर इन्हें अलग अलग चैम्बर में रखा गया था। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों को आज अदालत में पेश किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।
this is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सरस्वती पूजा से पूर्व बेमौसम बरसात से परेशान है मूर्तिकार व्यापारी और फल व्यापारी। सरस्वती पूजा के एक दिन पहले मिट्टी के बर्तनों के कलाकार और फल व्यापारी और मूर्तिकार भारी बारिश के कारण बेहद चिंतित है। मूर्तियों की बिक्री नहीं होने के कारण मूर्तिकार अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न हिस्सों में चिंतित है। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड के एक फल विक्रेता ने कहा कि सुबह से कोई खरीदार फल नहीं खरीद रहा है। बेमौसम बारिश से मेरा काफी पैसा नुकसान हो गया है। दूसरी ओर अधिकांश पूजाओं में कोरोना प्रतिबंधों के अनुपालन में छोटा किया जा रहा है। भले ही कॉलेज एवं स्कूलों में पूजा की लहर छाई हुई है, लेकिन अन्य बार की तुलना में कोविड प्रतिबंधों का पालन करते हुए इसे छोटे रूप में पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कुम्हार और फल विक्रेताओं को नुकसान हुआ है। अलीपुरद्वार जिले के यशोडांगा क्षेत्र के एक छात्र ने कहा, कोरोना की स्थिति में हम छात्र घर पर ही पूजा करेंगे। बारबिशा में एक फल विक्रेता ने कहा कि वे सुबह से ही परेशान है। প্রচন্ড অসুবিধা হচ্ছে, সকাল থেকে বৃষ্টি, ব্যবসাদাররা ব্যবসা করতে পারতেছে না। সরস্বতী পূজার বাজার যেভাবে জমে উঠে এবার সেভাবে জমে উঠছে। আপনিও তো বাজার করতে এসেছেন, এই বৃষ্টির মধ্যে কতটা অসুবিধা হচ্ছে? খুবই অসুবিধা হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে কেনাকাটা করার খুবই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। তবুও করতে হচ্ছে, তবু সরস্বতী পূজার বাজার তবু করতে হচ্ছে। ঠান্ডাও তো বেশ জমে পড়ে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, ঝোড়ো হাওয়া, জানি না মা সরস্বতী কী করবেন। ব্যবসা বৃষ্টির জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের কাস্টমার যারা আসতেছে তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে প্রতিমা নিতে। হ্যাঁ, ব্যবসা অনেকটাই আশা করেছিলাম, লকডাউন হয়ে গেছে, ব্যবসা ভালো হবে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তো কিছু করা যাবে না, তার জন্য আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। বৃষ্টিতে প্রতিমা নষ্ট হচ্ছে কি? হ্যাঁ, কিছু কিছু তো অসুবিধা হচ্ছে। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप तृणमूल नेत्री पर। जलपाईगुड़ी जिले में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप तृणमूल नेत्री पर लगा है। इस बीच गुरुवार की रात को जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 19 में सरकार द्वारा अधिकृत इंग्लिश मीडियम के प्राथमिक विद्यालय में फ्लैग और फेस्टून लगाकर जिला तृणमूल अध्यक्ष महुआ गोप ने सभा की। इस दौरान जलपाईगुड़ी के तृणमूल विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा सहित अन्य तृणमूल नेता उपस्थित थे। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमने स्कूल का इस्तेमाल किया ही नहीं है, यह उनकी पूर्व निर्धारित सभा थी। যে নির্বাচন চলে এসছে সামনে, 27 তারিখ তো ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, সেটারই ওই নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা। এটা পূর্ব নির্ধারিতই ছিল আজকে সভাটা। কোথায় হলো এটা? এটা একটা মাঠে হয়েছে আর কি। কোন স্কুলের মাঠ? কোন স্কুলের মাঠ এটা? এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সভা, এটা হচ্ছে মহন্তপাড়ার একটা মাঠে হয়েছে আর কি। কি মাঠ এটা? এটা মহন্তপাড়ার মাঠই বলে। স্কুলের তো পেছনে, মাঠটা তো আগে। কি বলবেন? না না না, সরকারি স্কুলে আমরা অলরেডি আমাদের আগেই চিঠি দেওয়া আছে, এটা আগে পূর্ব নির্ধারিত, এটা আমাদের ছিল, ভিতরে করা হয়নি, আমরা বাইরেটা করেছি। আমাদের ওয়ার্ডে তো সেরকম জায়গা নেই, আর এটা আমাদের আগেই চিঠি দেওয়া আছে, এটা পূর্ব ভোট ঘোষণা আগেই আমাদের এটা দেওয়া ছিল চিঠি। আজকে অনুষ্ঠানে ছিলেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস জেলার, জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি মহুয়া গোপ ছিলেন, শহর ব্লক সভাপতি ছিলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, আমাদের বিধায়ক ছিলেন পি.কে. বর্মা ছিলেন, আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আগামীতে বিপুল ভোটে 19 নম্বর ওয়ার্ড জয়লাভ করবে। দেখুন, এই অনৈতিক কাজ, নীতি বহির্ভূত কাজ, আইন কানুন কিচ্ছু নেই একটা দল যদি থাকে পশ্চিমবঙ্গে, সেটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা কতদিন থেকে দেখে আসছি
সারা বাংলার মানুষ তার সাক্ষী। এবং আজকে যেটা ঘটনা করছে, একটি সরকারি স্কুল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত একটি স্কুল, সেখানে বসে আজকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার পর তাদের মিটিং হচ্ছে। এরা সমস্ত কিছু পশ্চিমবঙ্গে যা বলতেছে নিজেদের দলের প্রপার্টি মনে করে, সরকারের না। এই সরকার দলের মধ্যে ফারাক বোঝার মতন যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাটাই দলের মধ্যে নেই। কিছু বলার নেই এদেরকে। আমরা অবশ্যই ইলেকশন কমিশনে কমপ্লেন করব, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সারা পশ্চিমবঙ্গের আজকে স্টেট ইলেকশন কমিশনের যে অবস্থা, সেটা একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কবজাগত একটা দপ্তর মনে হচ্ছে, যে যদি হওয়া উচিত না এটা। डुक्पा जनजाति के लोगों ने सोनाम लोसार महोत्सव का किया आयोजन। कालचिनी प्रखंड के बक्सा हिल्स के लेपचाखा में सोनाम लोसार महोत्सव आयोजित की गई थी। शुक्रवार को प्राकृतिक आपदा को नजरअंदाज करते हुए डुक्पा जनजाति के लोग सोनाम लोसार मनाने के लिए बक्सा पहाड़ी के लेपचाखा में एकत्रित हुए थे। हर साल सोनाम लोसार के अवसर पर बक्सा पहाड़ी में नृत्य और तीरंदाजी खेलों का आयोजन किया जाता है। एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले वाहनों का पीछा कर रहे हैं चोरों का गिरोह। मौका पाकर चोर वाहनों से सिलेंडर लेकर हो रहे हैं चंपट। चोरों का एक गिरोह गैस सप्लाई करने वाले वाहनों का पीछा कर मौका मिलते ही गैस सिलेंडर उठाकर भाग जा रहे हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं होने से डिलीवरी कर्मी बेबस नजर आ रहे हैं। यह घटना लगभग 1 महीने से जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न गैस आपूर्ति सहकारी समितियों का यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी शिकायत है कि डिलीवरी मैनेजर लोगों के घरों या फ्लैटों में जाकर वैन से सिलेंडरों को पहुंचा रहे हैं। तभी चोरों का एक समूह एक टोटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं और जब गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए डिलीवरी मैन वैन को सड़क पर छोड़कर डिलीवरी करने जाता है तो मौका पाकर चोर वैन से 1-2 गैस सिलेंडर लेकर फरार हो जाते हैं। पिछले 1.5 महीने में जलपाईगुड़ी के न्यूटन पाड़ा, पानपाड़ा, महामायापाड़ा समेत जलपाईगुड़ी के विभिन्न इलाकों के करीब 12 गैस सिलेंडरों में चोरी होने से हड़कंप मच गया है। फैंसी तरीके से गैस सिलेंडर चोरी करने के प्रयास में पुलिस मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि शहर में कई सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो चुके हैं। इस बीच डिलीवरी मैन विष्णुपद रॉय ने कहा कि हम इस स्थिति में काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हमें इन सिलेंडरों के लिए भुगतान करना पड़ता है। हमें केवल 7,200 रुपये का वेतन मिलता है। इसमें से हम प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2,500 रुपये की कटौती कर रहे हैं। इस घटना में जलपाईगुड़ी के डीएसपी समरपाल ने अधिक जानकारी दी है। সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন সিঙ্গাল আসি ভ্যানে বা গাড়িতে করে মাল ডেলিভারি করি, তখনই যখন সিঙ্গাল বাড়ি থেকে যে বাড়ির একটু ভিতরে থাকে গলিগুলোতে, গলির ভিতরে যাইতে হচ্ছে আমাদের, হয়তো দোতলায় একটু দেরি হচ্ছে, খুচরা পয়সা থাকে না, এইভাবে মাল দিতে গেলে দোতলায় উঠতে নামতে আমাদের সময় লাগে, এদিকে খুচরা পয়সাও থাকে না, একটু সময় থাকে, মিনিমাম 10-15 মিনিট দেরি ওয়েট করতে হয়। তার জন্য মনে করছি আইসে দেখি রাস্তার উপর গাড়ির থেকে 2টা ভর্তি সিলিন্ডার উঠে নিয়ে চলে গেছে। এই সমস্যা এখন প্রায় আমরা পড়তেছি। এই কিছুদিন যাবৎ মাস দেড়েক ধরে আমরা দেখতেছি যে সিলিন্ডার যখন কোনো লাইনম্যান ভ্যানম্যান সিলিন্ডারটা নিয়ে যায়, মানে কোনো ফ্ল্যাটে উঠতেছে, নিচতলার থেকে সিলিন্ডার চুরি হয়ে যাচ্ছে। সে কল থাকা অবস্থায় মানে ভর্তি সিলিন্ডার ওখান থেকে এরা মানে চুরি করছে। আমরা যার জন্য থানায় দ্বারস্থ যে শুধু আমাদের না, তিস্তা গ্যাসেরও সেম ওনার 6টা গেছে। আমরা জেডিসিসি কোঅপারেটিভ সোসাইটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার আমাদের 4টে গেছে, এবং করোনাও যে করে ওদেরও 2টো না কটা গেছে। এই নিয়ে আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে থানায় আমরা আইসির সঙ্গে দেখা করি এবং টাউনদারও উনার নির্দেশে টাউনদারের সঙ্গে আলাপ করি। ওনাকে আমরা ইনফরমেশন দিছি। আমাদের তরফ থেকে তিস্তার মানে বাবাইবাবু উনি পুলিশ কেসও করেছে, ডায়েরিও করেছে থানায়। আমরা মানে খুব উদ্বিগ্ন যে এই ধরনের আমাদের ভ্যানম্যানরা এগুলো করবে না। এর উপরে এদের রুজি রোজগার, এদের বড় জোর 10-20 টাকা কাস্টমারের কাছ থেকে মানে পায়াই এরা খুশি। একটা কমপ্লেন জমা পড়েছে, ওটা এনকোয়ারি স্টেজে আছে। ওটা অ্যাকচুয়ালি কে ইনভলভ আছে এর আগে তো এরকম মোটর অপারেন্ডি আমরা দেখিনি টাউনে, ফার্স্ট টাইম হয়েছে। কি হয়েছে?
গ্যাস হয়তো ডেলিভারি করতে গিয়েছিল, এসে দেখছে একটা সিলিন্ডার শর্ট আছে। পার্টিকুলার যে এজেন্সি কমপ্লেন করেছে ওখানেই হয়েছে নাকি আরও হয়েছে নাকি ওটা দেখতে হবে। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।